ایک بڑا وبال عارضی طور پر ٹل گیا، پیٹرولیم ڈیلرز نے ہڑتال مؤخر کر دی۔ مشیر پیٹرولیم نے ڈیلرز مارجن پر نظر ثانی کے لیے کمیٹی بنا دی۔ فیصل آباد میں پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے ہونے والی ہڑتال 48 گھنٹے کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کی کال پر مؤخر کی گئی۔ حکومت کی جانب سے تحریری یقین دہانی کروا دی گئی۔ پیٹرولیم ڈیلرز نے تحریری یقین دہانی کے بعد ہڑتال مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیٹرول پمپ مالکان کا 5% کمیشن میں اضافہ کرنے پر اصرار۔ 48 گھنٹے کے اندر کمیٹی دوبارہ بیٹھ کر ڈیلر کمیشن کو حتمی شکل دے گی۔ بشیر پیٹرولیم نے ڈیلرز کا مارجن پر نظر ثانی کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ مذاکرات کا حتمی راؤنڈ 48 گھنٹے بعد ہوگا۔ کمیٹی 48 گھنٹوں میں ڈیلرز کے مارجن کی ورکنگ بنا کر دے گی۔ کراچی میں ہونے والے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ پیٹرول پمپ مالکان صدر رانا فیاض حسین نے بھی ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان کیا۔ رانا فیاض نے مستقبل میں بھی مرکزی تنظیم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرنے کا اعلان کیا۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، چنیوٹ کے مقام پر نیشنل درجے کا سیلاب، چنیوٹ سے 1.5 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ دریائی پٹی پر واقع آبادیوں سے انخلا کرا لیا گیا۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ چنیوٹ سے 1,50,000 کیوسک کا ریلا تریمو کی جانب رواں دواں ہے۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلعی محکمے متحرک ہیں۔ دریا کنارے مقیم دیہاتوں کی سرویلنس کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا کی ہدایت پر امدادی ٹیمیں لوگوں اور مویشیوں کا انخلا کروا رہی ہیں۔ لوگوں کو ریلیف کیمپس میں منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب شہر میں موسلادھار بارش نے ہر طرف پانی کر دیا۔ فیصل آباد روڈ، لاہور روڈ، سرگودا روڈ، جنگ روڈ، گڑا محلہ، فرنیچر مارکیٹ، جمرہ چوک، مندر روڈ، چھٹی محلہ، غفور آباد، دلخوشاب پارک، سیشن کورٹ، کچہری، ریسٹ ہاؤس احاطہ میں بھی پانی جمع ہو گیا۔ پانی سے گاڑیاں بند، مسافروں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ ضلع انتظامیہ کی مشنری بھی نکاسی آب کے لیے فیلڈ میں متحرک رہی۔ ڈی واٹرنگ سیٹس کی مدد سے پانی نکالنے کا آپریشن کیا گیا۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ بوانا کے مقام پر چناب پھر بفر گیا، اونچے درجے کی سیلابی صورتحال، پانی قریبی آبادیوں اور دیہاتوں میں داخل۔ موزہ سامل، فتح کوٹ، تاجہ، نو ٹھٹا کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ بوانا کے مقام پر چناب میں سیلابی صورتحال پیدا ہوگی۔ 1,50,000 کیوسک سے زائد کے ریلے سے نشیبی علاقے شدید متاثر۔ سیلابی پانی اڈا کوپ، محمدی شریف، ٹھٹا نارا، موزہ سجن کا اور دیگر آبادیوں میں داخل ہونے لگا۔ علاقے کے لوگ سیلابی پانی میں محصور امدادی کارروائیوں کے منتظر۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 4 روز سے بجلی غائب، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں ڈوب گئیں، چارے کی فصل شدید متاثر، جانور بھوکے مرنے کا خدشہ۔ سیلابی پانی میں محصور اہل علاقہ انتظامیہ پر پھٹ پڑے، بولے حکام کی امدادی کارروائیاں صرف فوٹو سیشن تک محدود ہیں، ہمیں بے و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی اقدامات نہیں ہوئے۔ ہماری بجلی بند ہے، ہم بہت سی چیزوں سے محروم ہیں۔ ریسکیو والے آتے ہیں، فوٹو لے کر چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے انہوں نے بھی کوئی انتظام نہیں کیا۔ ہر چیز سے محروم ہے، ہمیں کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں ہو رہی، کوئی راستہ نہیں مل رہا، ہزاروں ایکڑ تباہ ہو چکے ہیں، تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے بر وقت امدادی کارروائیوں، وافر مقدار میں خوراک و ادویات کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عارف حسین کے ساتھ فخر دیوان بھٹا، سٹی 41 بوانا۔ جھنگ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح مزید بلند، چنیوٹ سے پانی کے بڑے ریلے کی جھنگ کی جانب پیش قدمی، براج پر لگ بھگ 86,000 کیوسک کا ریلا موجود۔ جھنگ کے مقام پر دریائے چناب کی سطح مزید بلند ہونے لگی۔ چنیوٹ سے لگ بھگ 1,40,000 کیوسک کا بڑا ریلا جھنگ پہنچ گیا۔ تریمو براج پر پانی کا بہاؤ 86,000 کیوسک ہے۔ جھنگ میں حفاظتی بند کے اندر موجود نشیبی علاقے بھی ڈوبنے لگے ہیں۔ کھروڑا باکر، کھولڑا، بستی ملاح سمیت متعدد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ چنیوٹ سے آنے والے پانی کے ریلے سے متعدد علاقوں میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال درپیش ہے۔ اس وقت جو ہے نا مالی مشکلات بھی ہے، مویشی سارے تقریباً لوگ باہر گئے ہیں، گھر سے بھی باہر نکل گئے ہیں لوگ۔ آگے کوئی بندہ نہیں گیا، کوئی انتظامیہ نہیں گیا، یا کوئی ایم پی ایم این اے ہمارا یا کوئی بڑے جو لوگ ہیں۔ جھنگ میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر چارے کا مسئلہ سر اٹھانے لگا ہے۔ مویشی پال حضرات کو چارے کی فکر ستانے لگی۔ سیلابی پانی زیادہ روز کھڑا رہا تو جانوروں کی نقل مکانی کرنا پڑے گی۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ فیصل آباد میں بادل برسے، خوب برسے، موسم تو خوشگوار ہو گیا مگر بارش پانی کی بر وقت نکاسی نہ ہونے سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ فیصل آباد میں ملت روڈ پر بارش کے بعد پانی جمع، خواتین نکاسی آب نہ ہونے پر پریشان، کہتی ہیں گزرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ بارش کے بعد ہمیشہ سڑک کی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ جب بھی بارش ہوتی ہے تو فیصل آباد کے جو ملت روڈ کا جو روڈ ہے وہ بہت زیادہ پانی سے بھر جاتے ہیں، اور
पानी तो पानी होता है और गंदा पानी भी बाहर आ जाता है गटरों में से, तो इस वजह से बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बारिशी पानी से ग्रीन टाउन समेत फैसलाबाद के मुतअद्दिद इलाके डूब गए। ग्रीन टाउन में बर वक्त नकासी आब न होने पर गलियां और मेन डबल रोड ज़ेरे आब। इलाका मकीनों ने साबिक MPA मेहर अहमद रशीद से अपने हलके पर तवज्जो देने और नकासी आब का मसला हल करने का मुतालबा कर दिया। घंटा हो गया इसका, रश्के को धक्के लगाते हैं, मोटरसाइकिलों को निशाताबाद में कोई मदद नहीं करता, कोई आता नहीं, कोई गड्डियां नहीं करता, सारे धक्के लवाते ऐसे थके खले हैं। शहर में होने वाली बारिश मरीजों के लिए जहमत बन के एलाइड अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी और अमराज़े कल्ब के वार्ड के बाहर पानी जमा हो गया। मरीज और तमादार बारिशी पानी से गुजर कर वार्ड तक जाने पर मजबूर। डिवीज़न का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बायस भी इसकी हालत ये है कि जो जरासीम लेके जा रहे हैं मरीज, पहले ही इस तरह वहाँ तक पहुँचना ही नामुमकिन है। हो सकता है जाते जाते मरीज की कोई बड़े हादसे का सबब बन जाए। नाक़िस इंतज़ाम की वजह से अस्पताल के नकासियाब की जो तस्वीर है यहाँ कर दी है। फैसलाबाद में बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इकबाल स्टेडियम के तरफ बारिशी पानी के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। बारिश रुकने के घंटों बाद भी नकासी आब के लिए बारिश से जुमरा रोड पानी में डूब गया। जी भाईजान, हम सुबह की बारिश हुई है, कारोबार हमारा ठप हुआ है, सुबह की रेडी खड़ी है, कोई गाहक नहीं आ रहा, हम बेरोजगार खड़े। वासा का कोई बंदा नहीं यहाँ पे आया पानी से निकालने। जी भाईजान, इधर से पानी बहुत है, कोई बंदा नहीं आया इधर से पानी निकालने वाला। हम सुबह के इधर जलील हो रहे हैं। आम शहरों पर बारिशी पानी की वजह से गाड़ियां, मोटरसाइकिल बंद होने लगी। शहरियों ने वासा से बर वक्त इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। बरसात के रिमझिम, कहीं बादल गरजे, कहीं मीना बरसा। फैसलाबाद में शदीद बारिश से निशाताबाद के मकाम पर रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ गया। बारिश से जहां मुतअद्दिद अहम शाहराहें ज़ेरे आब आ गईं, वहीं निशाताबाद के मकाम पर फैसलाबाद लाहौर रेलवे ट्रैक भी बारिशी पानी में डूब गया। लोगों का कहना था कि महकमा रेलवे की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किया जाता। बारिश में अक्सर सड़क और रेलवे ट्रैक पर पानी जमा हो जाता है, जो हादसे का सबब भी बन सकता है। हल्की जी बारिश होंदी है इत्थे इस तरह ही पानी चढ़दा है। कई एक दिन इत्थे जाने कि बीबी लाइन क्रॉस करन लगी, जाने भाई भी उन्हें खिंच के कढ़िया असां पानी दे विचों। ये इत्थे हालात, कोई इंतजामिया कोई इहदा इंतजाम नहीं करदी। दूसरी जानिब भाईवाला रोड से भी बारिशी पानी रेलवे ट्रैक पर आने लगा। शहरियों ने इंतजामात नाकाफी करार दे दिए। आने वाले वक्तों के में भी ये आदमी जो एक्सीडेंट की वजह से परेशान होते हैं, वो एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि सारी सड़क इसी तरह पानी की वजह से ओवरफ्लो हुई है और गुजरने वालों को परेशानी होती है। इस वजह से अक्सरियत जो है एक्सीडेंट होते हैं यहाँ। रेलवे ट्रैक पर जमा बारिशी पानी खतरे की घंटियां बजा रहा है। शहरियों ने जिले इंतजामिया और महकमा रेलवे से नकासी आब यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी गायब, 2 माह बाद भी फराहमी मुमकिन न हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 90 मार्केट में 150 रुपए तक पहुंच गई। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की कमी का मसला हल ना हो सका। जबकि यूटिलिटी स्टोर पर एक तरफ चीनी नायाब हो गई, दूसरी जानिब चावल भी दस्तयाब नहीं। मुहर्रम में शहरी नजर न्याज के लिए चावल और चीनी का वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की फराहमी ना होने के बाइस मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 90 मार्केट में 150 रुपए तक पहुँच गई। कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिस वक्त यही एक यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी मिलते 91 रुपये रेट है, वो भी यहाँ पर नहीं दस्तियाब, जाके आम मार्केट में 150 रुपये में खरीदनी पड़ती है। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि चीनी की कीमत को तो कम किया जाए, क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ में इस्तेमाल होती है। अब मुहर्रम उल हराम का महीना है, नियाज पकानी होती है, तो इस वक्त मुहर्रम के महीने में भी इन्होंने चीनी का एक तो दस्तियाब नहीं, और ऊपर से सुनने में आया कि इसका चीनी का रेट भी बढ़ा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर डीलर्स का कहना है हुकूमत की जानिब से बर वक्त टेंडर नहीं किए गए, जिसके बाइस अशिया खुरनोश की फराहमी में तातुल आया है। शहरियों ने इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद बाईपास बरासत सतियाना मोटरवे M3 तक 2 रोया सड़क के लिए 1 अरब 62 करोड़ 50 लाख मंजूर। जमीन की खरीदारी के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सेक्रेटरी CNW को मरासला जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से स्कीम और फंड्स मंजूर किए गए हैं। फैसलाबाद सतियाना रोड की स्कीम विफाक के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। सड़क की तामीर 9 के लिए NOC जारी करने की हिदायत कर दी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक वज़ीर आज़म की स्कीम का संगे बुनियाद रखेंगे।
धागा महंगा, बिजली भी महंगी, ऊपर से रिफंड्स को लग गई ब्रेक। ऐसे में करें तो क्या करें? फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने सर पकड़ लिए। धागा महंगा, बिजली की कीमतें भी पहुंच से बाहर हो गईं। सनतकारों का कहना था कि बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए खतरनाक हो सकता है। इंडस्ट्रियल सहूलियात ना मिलने की वजह से हम खिते में कमजोर हो रहे हैं, जबकि दीगर ममालिक कई गुना मजबूत होते जा रहे हैं। जब भी आपकी बिजली की प्राइस बढ़ेगी तो आपने जितना रॉ मटेरियल जितनी फैक्ट्रियों से सोर्स करें, ना कि सिर्फ हमारी अपनी फैक्ट्री बल्कि जिन हमारे अलाए जो हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल सोर्स कर रहे हैं उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जब कॉस्ट बढ़ेगी तो ये पूरी सोसाइटी के अंदर आपका प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। दैट्स मीन कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई, और इन्फ्लेशन जैसी बढ़ेगी एक तो इंटरनेशनली हम कंपेटिटिव नहीं रहेंगे, हमें ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया ने कहा कि IMF की शराइत हमारी इंडस्ट्री को निगल जाएंगी। एक्सपोर्टर हजरात इंडस्ट्री को पहले ही बमुश्किल घसीट रहे हैं। हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। नो डाउट गवर्नमेंट मुश्किल हालात में, गवर्नमेंट हमेशा IMF की कंस्ट्रेंट से तो बाहर निकल नहीं सकती, और IMF की शराइत है, ये हमें भी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन गवर्नमेंट को भी सोचना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पार्ट है। बिजली गैस की प्राइसेस को लेवल पे रखना ये गवर्नमेंट का पार्ट है। एक्सपोर्टर्स का कहना था कि दुनिया में हर मुल्क अपने एक्सपोर्टर्स को रियायत, सहूलत और रिलीफ देता है, जबकि हम अपनी इंडस्ट्री को बचाए रखने के हवाले से परेशान हैं। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के पोश इलाके सूसा रोड पर ताजरों की अक्सरियत टैक्स अदायगी से गुरेजा। सूसा रोड पर बड़े ब्रांड, सैनिटरी स्टोर्स, होटलों, शोरूम्स और दफातर की भरमार, लेकिन 71% ताजरों ने साल 2022 में टैक्स ही नहीं दिया। सरकारी हस्पतालों में सहूलियात की अदम दस्तयाबी। फैसलाबाद के तमाम अस्पताल जिगर का साइज मापने वाली मशीन फाइब्रोस्कैन से महरूम है। जिगर के अमराज में मुबतला मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी कहते हैं, फाइब्रोस्कैन मशीन बहुत जरूरी है। लीवर सेंटर के साथ हमारा इल्हाक है, मगर वहाँ मशीन खराब है। आपको शायद पता हो कि हमारे पास एक लीवर सेंटर है DHQ हॉस्पिटल में, जो लीवर फाउंडेशन जो है रन कर रही है, और ये हमारे साथ कोलैबोरेशन में है। और हमारे DHQ में जितने भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं लिवर के हवाले से, जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको वो लिवर सेंटर देखता है। वहाँ पे एक फाइब्रोस्कैन मशीन रही है और वो काम करती रही है। अलाइ DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में फाइब्रोस्कैन टेस्ट की सहूलत मुयसर न होने से मरीजों का इलाज मुतासिर हो रहा है। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि मुखैर हजरात से या फिर अपने फंड से मशीन खरीदी जाएगी, जो कि जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद को फराहम की जाएगी। आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम ये फाइब्रोस्कैन मशीन या तो हमारे गुलाम मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल में आएगी, क्योंकि हमारा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी यूनिट वहाँ पे है और वहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले 1-2 महीने में इसको प्रोक्योर करें। अगर गवर्नमेंट लेवल पे हमें मिल गई तो ठीक है, वरना हम इसको डोनेशन बेसिस पे ले लेंगे। प्राइवेट क्लिनिक्स और अस्पतालों में 5000 रुपए का फाइब्रोस्कैन टेस्ट किया जा रहा है। कैमरामैन जुनैद अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कानूनी तरीके से मुश्किल, गैर कानूनी तरीके आसान। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े एजेंट शहरियों को लूटने में मसरूफ। कागजात जमा करवाने हों या लंबे कतारों से बचना हो, एजेंट पासपोर्ट ऑफिस की मिली भगत से शहरियों को लूट रहे हैं। वतन अजीज़ में अगर आपने कोई लीगल काम करना है, अच्छे तरीके से करना है, कानूनी तरीके से करना है, तो उसके लिए आपको बेशुमार दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपने 2 नंबरी से काम लेना है तो वो काम आपका मिनटों में हो जाएगा। उसकी वाज़ेह मिसाल आपको अभी दिखाते हैं कि अगर आपने पासपोर्ट बनवाना है कानूनी तरीके से, आपको लंबी कतार का सामना करना पड़ेगा, आपकी जल्दी बात नहीं सुनी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स उनको कंप्लीट नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपने यही काम थोड़े से पैसे बढ़ाकर ठीक पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े एजेंट और जो उनके टाउट है उनसे करवाना है, तो ना आपको किसी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, बल्कि चंद आपने पैसे बढ़ाने हैं, आपका पासपोर्ट भी खुद बनेगा। आपने कोई इलीगल कोई डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इधर रद्दोबदल भी करवाना है तो उसका भी कोई हरज नहीं है। दिन दिहाड़े ये डाका डाला जा रहा है, कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। हाँ जी, पासपोर्ट यार लाना ही बढ़िया, कोई लाना तो बगैर फीस फीस कितनी है वैसे? आपने फीस नहीं पे की है? नहीं, डॉक्यूमेंट्स में लैके आने सारे पता ही नहीं है कख का भी। मैं क्या वो सामने टेबल अपना उत्थे आइयो बैठ के तुहानू समझा देंगे, तो रोड से नहीं समझ लगे। नहीं, मैं फीस फूस फड़ लियावांगा ना, फिर सारा कुछ कर लियावांगा। की हिसाब किताब है इन्हां दा? नॉर्मल दी 3000 है, अर्जेंट दी 5000 ते लैंड लोन तो बगैर हो जाएगा सारा। आओ जनाती गल लैंड तो बगैर करवाना, वो भी तरीका तुहानू दस देंगे। फिर तुहानू फीस दस्सी गई ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਓ, ਜਨਾਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਰੇ ਲੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੋਗੇ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈਗਾ
ठीक है ना, ते पासपोर्ट ते वो नाम नहीं चढ़ाना, पासपोर्ट ते ID कार्ड वाला चढ़ाना है। पहले भी पासपोर्ट का बनया पहले नहीं बनया होया, मतलब कि वो कहते हैं ना कि सनद वगैरह देखते हैं, सनद के हिसाब नाल चढ़ाते हैं, वो वगैरह काम नहीं। ID कार्ड के मुताबिक कराना वा, आहो वो होई है, डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू नहीं है। वो भी पैसे लगते फिर हो जाता ਹੁੰਦਾ। ठीक हो गया सर, पक्का काम मतलब कि अंदरों वाला ना जितना कोई बच्चा सी काम करते ते तेरे नाल गल करन दे। अच्छा फीस कितनी दसी तुसी पासपोर्ट की, वैसे कितनी है? नार्मल दी 3000, अर्जेंट दी 5000। नार्मल कोई दस दो ना, मैं उन्हें फिर पैसे ले आवा अंदाजन कितने, मतलब कि 3000। ID कार्ड देखांगे, ਤੁਹਾਡਾ केस देखांगे, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ID कार्ड मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 1996 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਐਡਰੈਸ ਪੇਪਰਸ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। उनका टोटल तेरा 6500 रुपये नॉर्मल का खर्चा वा। ये आपके सामने सारी सूरत हाल है, एजेंट आपके सामने था, सारा कुछ उसने खुद बता दिया। अगर आपने पासपोर्ट यहाँ पर बनाने आना है कोई मसला नहीं है आपको, लेकिन अगर आपने कानूनी तरीके से बनाना है पासपोर्ट, तो आपको लाइन में भी लगना पड़ेगा, खारी का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन यही आपने ज़ायद पैसे देने हैं, एजेंट के हत्थे चढ़ना है आपने, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। आपने पैसा देना है थोड़ा सा ज़ायद और आपका पासपोर्ट खुद तैयार होगा। सामने मैं आपके यहाँ पे आया हूँ, किसी को मैंने खुद नहीं बोला, मेरे पास आए हैं। ये इन इदारों का हाल है, आम शहरी को पासपोर्ट बनाने के लिए किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये आपको दिखा दिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि अंदर इनके कोई बंदे मौजूद ना हों, खुद ऑफर करवाते हैं, सारे काम करेक्शन करवानी है, इलीगल काम करवाना है, कुछ भी करवाना है, पैसे आपने ज़ायद देने हैं, आपका पासपोर्ट बन जाएगा। जी फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फकदान, अस्पताल जिगर का साइज मापने वाली मशीन फाइबर स्कैन से महरूम। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की अदम दस्तयाबी, फैसलाबाद के तमाम अस्पताल जिगर का साइज मापने वाली मशीन फाइब्रोस्कैन से महरूम हैं। जिगर के अमराज में मुबतला मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी कहते हैं, फाइब्रोस्कैन मशीन बहुत जरूरी है, लीवर सेंटर के साथ हमारा इल्हाक है, मगर वहाँ मशीन खराब है। आपको शायद पता हो कि हमारे पास एक लिवर सेंटर है DHQ हॉस्पिटल में, जो लिवर फाउंडेशन जो है रन कर रही है, और ये हमारे साथ कोलैबोरेशन में है। और हमारे DHQ में जितने भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं लिवर के हवाले से, जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको वो लिवर सेंटर देखता है। वहाँ पे एक फाइब्रोस्कैन मशीन रही है और वो काम करती रही है। अलाइड DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में फाइब्रोस्कैन टेस्ट की सहूलत मैसर न होने से मरीजों का इलाज मुतासर हो रहा है। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि मुखैर हजरात से या फिर अपने फंड से मशीन खरीदी जाएगी, जो कि जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद को फराहम की जाएगी। आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम ये फाइब्रोस्कैन मशीन या तो हमारे गुलाम मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल में आएगी, क्योंकि हमारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यूनिट वहाँ पे है और वहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले 1-2 महीने में इसको प्रोक्योर करें। अगर गवर्नमेंट लेवल पे हमें मिल गई तो ठीक है, वरना हम इसको डोनेशन बेसिस पे ले लेंगे। प्राइवेट क्लिनिक्स और अस्पतालों में 5000 रुपए का फाइब्रोस्कैन टेस्ट किया जा रहा है। कैमरामैन जुनैद अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। कि यहाँ आपको बताएं, वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल। हाई कोर्ट ने वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर अमीन को काम करने से रोक दिया। गवर्नर पंजाब ने 22 जून को डॉक्टर नासिर अमीन को बतौर वाइस चांसलर तैनात किया था। आपको बता रहे हैं, वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल। हाई कोर्ट ने वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर अमीन को काम करने से रोक दिया। गवर्नर पंजाब ने 22 जून को डॉक्टर नासिर अमीन को बतौर प्रो वाइस चांसलर तैनात किया था। चेयरमैन PTI फैसलाबाद पुलिस की JIT में पेश न हुए। थाना सिविल लाइन में दर्ज 9 मई वाक़े के मुकदमे में तलब किया गया था। उधर झंग में गैर कानूनी अराजी अलॉटमेंट पर एंटी करप्शन में मुकदमे का मामला चेयरमैन PTI की बहन उज़मा खान की एंटी करप्शन फैसलाबाद में पेश। चेयरमैन PTI फैसलाबाद पुलिस की JIT में पेश न हुए। थाना सिविल लाइन में दर्ज 9 मई वाक़े के मुकदमे में तलब किया गया था। चेयरमैन PTI को पेश होकर शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया गया था। थाना सिविल लाइन के 2 एहलकारों ने जमान पार्क में चेयरमैन PTI को तलबी का नोटिस वसूल कराया था। थाना सिविल लाइन में 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज पर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। मुकदमा में आर्मी एक्ट की दफात भी शामिल है। थाना सिविल लाइन के मुकदमा में चेयरमैन PTI को बाकायदा नामजद किया गया है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम चेयरमैन PTI की दोबारा तलबी का फैसला करेगी। उधर जंग में गैर कानूनी अराजी अलॉटमेंट पर एंटी करप्शन में मुकदमा का मामला चेयरमैन PTI की बहन उज़मा खान एंटी करप्शन फैसलाबाद में पेश। उज़मा खान को 2 मुकदमात में पेशी के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर उज़मा खान पर करोड़ों रुपए की अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम करवाने का इल्जाम है। उज़मा खान ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। उज़मा खान के वकील मलिक खालिद शफीक ने मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी। वकील मलिक खालिद शफीक कहते हैं, 18 हज़ारी में 1 केनाल की जगह उज़मा खान के नाम पर मुंतकिल हुई है। FIR
IR में 7,400 किनाल लिखी गई है, जबकि कागजात में 1 किनाल लिखा है। टोबा टेक्सिंग में मुहर्रम के जुलूस और मजालिस के मकाम पर कैमरे नस्ब। जिला भर में 130 CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। गोजरा, पीर महल और कमालिया में भी CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों के जरिए म्यूनसिपल कमेटी टोबा टेक्सिंग में कायम कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की जाएगी। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जाहिद फरीद तारड़ का कहना है कि मुंतजमीन को जनरेटर भी फराहम किए गए हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जेल, खानाजात और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कायमा कमेटी का इजलास। जेलों में कैदियों को तलीमी सहूलियात फराहम करने के लिए कमेटी मेंबरान मुतहरिक। चेयरमैन कमेटी डॉक्टर अशफाक और शफीक शाह ने कहा कि कमेटी मेंबरान जेलों में तलीमी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत GC वुमेन यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम पंजाब वॉलीबॉल लीग जारी। क्रिसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले मैचेस में फैसलाबाद और लाहौर की टीमों ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत खेलों के मुकाबले GC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम पंजाब वॉलीबॉल लीग के 2 मैचेस क्रिसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में हुए। पहले मैच में फैसलाबाद ने रावलपिंडी को 2-1 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में लाहौर ने सियालकोट को हरा दिया। बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी तैयारी थी और हमारे मैम ने जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, इतना अच्छी ये मतलब इवेंट्स थी, इतनी अच्छी तैयारी की है और हायर एजुकेशन कमीशन जो और प्राइम मिनिस्टर का थैंक यू जो इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंचार्ज स्पोर्ट्स फहमीदा अयूब, तनवीर हमीद, राना सलीम व दीगर ऑफिशियल्स भी वॉलीबॉल लीग के मैचेस के दौरान मौजूद रहे और स्पोर्ट्स के फरोग के लिए हुकूमत और हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की काविशों को सराहा। 5 रीजन से जो है वो टीम्स आई हैं, जिसमें लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद, 5 रीजन्स की टीम जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और मैं यहाँ पे पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन की भी बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपने ऑफिशियल्स हमारे पास भेजे। रीजन की टीम्स बनाई, फिर रीजन जो है अब प्रोविंशियल लेवल पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोविंस जो है फिर वो नेशनल में जाके पार्टिसिपेट करें और उसमें से 22 खिलाड़ी जो हैं वो चुने जाएंगे। और ये देखें कि तालीम के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है। पंजाब वॉलीबॉल लीग के मैचेस 23 जुलाई तक जारी रहेंगे, जिसकी इख्तितामी तकरीब विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में होगी। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। मुहर्रम हराम में मासूमान करबला की याद में न्याज और लंगर की तकसीम। टूटियों में नजरो न्याज तकसीम करने की रवायत ताहाल जिंदा है। वाक़या करबला की याद में प्यास से बिलकने वाले मासूम शहजादों की याद ताज़ा करने के लिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी कुजियों टूटियों में न्याज और पानी तकसीम करते हैं। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਏ। कुजियाँ ठूठियाँ बनाने के लिए कम्हार दूर दराज से चिकनी मिट्टी तलाश करके लाते हैं। मिट्टी रात भर भिगोई जाती है और चक के ऊपर रखी जाती है। कम्हार तेजी से घूमती हुई मिट्टी को हाथ की महारत से कुजियों और ठूठियों की शक्ल में डाल देता है। हम पहले इसको मिट्टी को मुख्तलिफ जगहों से तलाश करके लेके आते हैं और इसको लाकर एक रात भिगो के रख देते हैं और अगले दिन तैयार करके मिट्टी को हाथ की महारत के साथ फिर तैयार करते हैं। मुख्तलिफ न्याज घरों में बांटी जाती हैं, लेकिन जो कुछ टूटी की न्याज है ना वो सबसे अच्छी बच्चे बहुत पसंद करते हैं और इस न्याज को मुख्तलिफ बहुत दूर से लोग हमसे लेने आते हैं और ले जाकर बच्चों में तकसीम करते हैं और बच्चे बहुत शौक से घरों से आगे लेके जाते हैं। सदियों बाद भी मुहर्रमुल हराम में लोग कुजियों और ठूठियों में खीर, चावल, मीठा पानी या दूध तकसीम करके मासूमाने करबला की कुर्बानियों को याद रखे हुए हैं। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।